Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is Sareem Kurtesi here, and I scored 182 in my MDCAT, and I've been teaching physics for almost 2 years now. So today we are going to have a physics MDCAT masterclass, and in this we will be discussing all the things that you need to know in order to ace your MDCAT exams physics portion. So let's start. Physics is like the most important portion when it comes to application based stuff because physics may you just don't need to master the theory, but you need to have a better grip on the MCQs as well. Also, you need to know how to solve a specific certain question. सो ये चीज़ भी ना बहुत ज़्यादा important होती है ठीक है so today I will be telling you everything that you need to know in order to ace the physics portion of your MCAT. Also, we have a little surprise for you guys by the end. There are quite a lot of surprises in the middle as well, but I encourage you all to stay till the end to get that little surprise we have for you guys. So starting with the uh, first slide, we are going to discuss कि हमने आज चीज़ें cover क्या करनी है. ठीक है. So the first thing is the high yield topics. कौन से topics high yield है? We will be discussing those. There are certain specific tips and tricks that you need to know in order to ace your MDCAT. And then we will be discussing the new chapters as well, since you know in MDCAT 2025 we have some new additions. Talking specifically about the physics portion, we have vectors in equilibrium, alternating current, and another chapter that is fluid dynamics. These chapters were never in the syllabus before, but this year they are. So some of you might be confused as in how to cover these, as you guys don't even have that much of the practice material for these chapters. So it's like really, really important to know how to practically cover these chapters in order to score maximum marks. Then we are going to discuss about the mnemonics and some sort of memory hacks. We will also discuss the past paper pattern, and we'll be having question answer session, and we'll discuss about the time management as well. So starting with the high yield chapters वो होते हैं कि जहाँ से आपके पास सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं. So there are different chapters. They are basically very important. So whenever you are preparing, you need to cover the high yield topics or high yield chapters first, and then you should go for like the medium yield or low yield. क्योंकि अगर आप लोग high yield chapters पे अच्छी grip हासिल कर लेते हो, you will be better able to solve questions, understand the concepts, and also you know which chapters to focus more on. ठीक है? So we have here a list of chapters that you need to prioritize, or at least make sure you have like a strong base. You're having like a very strong base of these chapters, or इनके जितने ज़्यादा questions practice कर सकते हो, you need to practice those. Starting with force and motion, work and energy and power, then we have oscillations and waves. These are the three chapters from the first year portion. Talking about the second year portion, we have electrostatics, current electricity, electromagnetism, dawn of modern physics that some of you might not that much like, and then we have nuclear physics. Talking about the specific topics from these chapters, we'll discuss those as well कि आपने इन चैप्टर्स में से स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक्स को कवर करना है सिंस जब हम चैप्टर्स को हाई यील्ड कह रहे होते हैं सो देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स एज वेल दैट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट ठीक है सो बिफोर आई मूव टू द टॉपिक्स आई जस्ट वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू गाइज कि इन चैप्टर्स में या ओवरऑल फिजिक्स में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू गाइज फेस सो आई हैव अ बेटर आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग के जो टारगेट ऑडियंस है आप लोगों को किस चीज में प्रॉब्लम आ रहा है सो दैट आई कैन गाइड यू गाइज अकॉर्डिंगली आई विल बी टेलिंग कि इनके अंदर कौन से सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आप लोगों को कवर करने हैं अदर देन दैट जो आप लोगों की क्वेरीज हैं आई वांट टू लिसन टू देम फर्स्ट एंड देन आई वांट टू आंसर अकॉर्डिंगली based on your queries. So आप लोग chat box में I'm looking at the chat box साथ साथ so you guys can let me know by writing in the chat box कि in chapters में या overall physics में what are some problems that you guys face. We'll start in a minute. जब तक you guys can write in the chat box.
अच्छा, सो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सेज के बारे में बात करते हैं। सो मैं ये बता अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जनरली प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो हमें मिल रहे हैं दे आर बेसिकली न्यूमेरिकल्स, फोर्स एंड मोशन, एप्लीकेबल ऑफ फार्मूला व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यू, अवॉइड एक्सट्रीम when we have numericals. फिर current electricity, numericals, resistor numericals, force and motion में theory based questions में मुश्किल हो रही है, formula learning tricks, numericals, oscillation numericals, force and motion numericals, then ये waves and oscillations, vectors का भी है, MCQ solve करने में बहुत ज़्यादा formulas हैं, numericals and waves। अच्छा, सो अगर हम इनको देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम मिल रहा है दैट इज बेसिकली न्यूमेरिकल्स। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज अ स्किल। इफ यू नीड टू मास्टर स्किल, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उस स्किल को लाइक डेवलप करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप लोग इस स्किल को डेवलप करोगे, इनहेंस करोगे, और उतने ज्यादा आप लोग इजीली उस चीज को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अगर हम चैप्टर वाइज यहाँ पे बात करें तो फोर्स एंड मोशन में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है। उसके अंदर जो टॉपिक है जो बहुत आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है वो होता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। आई गेट दैट। प्रोजेक्टाइल मोशन के आप लोग शॉर्टकट फॉर्मूलाज कर सकते हो। देखो, अगर बच्चों को ज्यादातर मसला ये आता है कि लेट्स से अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि आपको टाइम पीरियड दे दिया गया, आपने हाइट फाइंड करनी है या कुछ भी इस तरीके से, आपको हाइट दे दी गई है और वो आपसे कह रहा है आप रेंज फाइंड करो, तो हमारे पास डिफरेंट शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। दैट इज बेसिकली द इंटर रिलेशनशिप, कि आपके पास ये वाली टाइम पीरियड और हाइट एक ही फॉर्मूले में आ रहे होंगे। ठीक है, सो हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट शॉर्टकट फॉर्मूलाज प्रेजेंट होते हैं जिनको आप लोगों ने याद करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते। ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट लिए बगैर आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकोगे, आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज की बात करूँ तो हमारे पास जो इंटर रिलेशनशिप वाले फॉर्मूलाज है ना, वो आपके पास इस तरीके से कि जिस तरह आपके पास एक फॉर्मूला होता है r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। ठीक है, उसमें r इज बेसिकली द रेंज, tan थीटा 4 कांस्टेंट है और h इज बेसिकली द हाइट। ठीक है, फिर आप इस तरह आपके पास फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू r मैक्स साइन 2 थीटा, यानी रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास और भी फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास है रेंज मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। अब ये इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं जो आप लोगों को याद करने हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। वर्क एनर्जी में जो थोड़ी सी मुझे मुश्किल चीज लगती है, जो पोटेंशियली आप लोगों को भी लग सकती है, वो ये है कि आपके पास जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, उसमें आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि जो मोमेंटम है उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द मास एंड काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले को आप ना मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का बना सकते हो बाय शिफ्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप शिफ्ट करके इसको आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता रही हूँ सो दैट यू गाइस रिमेंबर दैट। ऑसिलेशन एंड वेव्स में जहां तक मुझे लग रहा है, अगर अदर देन दैट कोई इश्यूज हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, ऑसिलेशन और वेव्स में जहां तक मुझे लग रहा है तो आप लोगों को इशू आता होगा जो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं उसके अंदर, नोड्स एंटी नोड्स जहाँ पे हम डिस्कस करें, लूप्स हैं, हार्मोनिक्स की बात करें, उसमें भी आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। आपने शॉर्टकट फॉर्मूलाज को मास्टर करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और वैल्यूज फाइंड करने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूलाज को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। फील्ड का कॉन्सेप्ट है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, आगे कैपेसिटर वाली चीज भी है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। हर टॉपिक को इंडिविजुअली कवर करो एंड टॉपिक्स को फिर इंटर रिलेट करो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जनरली जो चीज थोड़ी वियर्ड है दैट इज द किरचॉफ लॉ, जिसके अंदर बच्चों को बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन सिंस वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप लोगों को पोटेंशियली इशू आ सकता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और इन टॉपिक्स में। ठीक है, ये टॉपिक्स भी कॉन्सेप्ट बेस हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हैंड रूल में इशू आ रहा होगा। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ जो अगर आप लोग इंक्लूड कर दोगे ना अपनी लर्निंग में, तो वो बहुत सी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो आपके हैंड रूल्स होते हैं ना, वो जो करंट की डायरेक्शन वो जो अप्लाई होते हैं ना, वो अप्लाई होते हैं कन्वेंशनल करंट के ऊपर। जो आपको सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन मिल रही होती है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो देयर इज अ डिफरेंस। आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस पता होगा। जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक,
और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपके पास होता है नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंस होता है, और जो जितने भी आप लोग हैंड रूल स्टडी कर रहे हो वो आपके पास एप्लीकेबल होते हैं फॉर कन्वेंशनल करंट, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को अगर आप देखोगे ना तो आपको इस चैप्टर से होगी नफरत, आई गेट दैट, ठीक है। आई नेवर लाइक दिस चैप्टर व्हेन आई वाज इन माय एफएससी, ठीक है, बट दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी मच फैक्ट बेस्ड, ठीक है। इसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, समझने वाली चीजें, एक दफा आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो कि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी होती क्या है, करंट का फ्लो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इन चीजों को आप लोग एक दफा अच्छी तरीके से जब समझ लोगे ना तो ये सारा कुछ आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इट्स जस्ट वन कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन ने आके क्या ऐसी चीज बताई जो बाकी साइंटिस्ट क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग देख रहे थे और उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ नहीं आ रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट की पहली बात नेचर, हम कितनी उसको बेस कर सकते हैं कि आपके पास कितनी नेचर होती है लाइट की, क्या वो वेव के तौर पर एक्ट करती है या वो पार्टिकल के तौर पर एक्ट करती है, वो दोनों के तौर पर एक्ट करती है। कौन से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो वेव नेचर को शो करें, कौन से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को शो करें। जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं वो किस नेचर को शो कर रही है लाइट की, ठीक है। वो बेसिकली किसको शो कर रही होती है, पार्टिकल नेचर को। जो क्लासिकल फिजिक्स में जो साइंटिस्ट जिस चीज को देख रहे थे इसको, वो इसको वेव की फॉर्म में देख रहे थे, इस वजह से उनको इशू आ रहा था, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आपके पास हाफ लाइफ के डिफरेंट शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। इसमें हाफ लाइफ में ही बच्चों को सिंपली इशू आ रहा होता है। एक और चीज जो थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज करती है वो ये है कि आपके पास डिकेड एटम्स और अनडिकेड एटम्स, इसके शॉर्टकट फॉर्मूला भी है और ये समझने का भी तरीका है। जिस तरीके से लेट्स से मेरे पास पहले एक चीज है 1, या मैं इसे कह देती हूँ 100%, ठीक है। सो अगर जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 1 के बजाय 1/2 या 0.5 हो जाएगी, या 100% तो 50% रह जाएगी, ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद वो कितनी रह जाएगी मुझे ये पता चल रहा है, कितनी डिके हो गई अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे टोटल में से कितनी रह गई है उसको माइनस कर देना तो मुझे पता चल जाएगा कितनी डिके हो गई है, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं। अच्छा, फॉर्मूला कैसे याद करना है? फॉर्मूला को याद करने का ये तरीका होता है कि कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं। देखो, एक तो ये है कि कभी बेस नहीं करना इस चीज पे कि आप डेरिवेशन समझ लो और पेपर वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के डिराइव करें, क्योंकि दिस इज वे टू टाइम कंज्यूमिंग। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है। सो ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी। ऑल्सो जो दूसरी चीज है, याद कैसे करना है, तो फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो, रिलेशनशिप चेक करो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के दरम्यान और बार बार लिखो। एक फॉर्मूला शीट बना लो, उसको अपने सामने रखो, उसको बार बार देखो, उसको बार बार समझो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी दफा उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, वो फॉर्मूला जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, also one more thing, we have a little surprise for all of you who are gonna stay till the end. हम जो chat box है उसके अंदर एक चीज शेयर करेंगे that is free and that is like super amazing and super helpful for all of you, ठीक है। In this in today's lecture basically हम बहुत सी ऐसी चीजें आगे पढ़ेंगे और देखेंगे so that are gonna be super helpful and super amazing for you. Some free stuff, some paid stuff, but most of all the free stuff that is like super amazing, top notch, ठीक है। So ये चीज अपने जहन में रखना कि the ones who are gonna stay till the end, they are gonna get that little surprise we have for you guys, ठीक है। So I'm gonna say कि don't miss that, ठीक है। अच्छा, so high yield chapters को हमने इस तरीके से डिस्कस किया। Okay, next we have different tips and tricks. अब मुझे ये पता है कि कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है एमडी-कैट में, आप लोगों को भी पता है, एंड दैट मस्ट बी अ मिस, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स करना जो आप लोगों को पहले भी अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से आप लोगों ने प्री मेडिकल रखा था कि मैथ्स से जान छूट जाए, लेकिन स्टिल मैथ इज गोना बी लाइक एवरीवेयर। सो है, हमने इस चीज को लाइक अकोमोडेट तो करना है, हमने इस चीज को फेस तो करना है, वी कैन नॉट लाइक अवॉइड दैट, राइट। सो वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज कि हम इसको स्मार्टली फेस करें ताकि हमें भी ज्यादा इशू ना आए और हमारे पेपर सॉल्व होते हुए भी कोई ज्यादा इशू ना आए, ठीक है। सो बेसिकली एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, आपके पास डेसिमल में चीजें गिवन होती हैं, आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है। आपने राउंड ऑफ करना है, जिस तरीके से पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, तो आप उसे राउंड ऑफ कर सकते हो किसमें, 3 में। 3.1 अगर राउंड ऑफ होगा तो 3 बन जाएगा ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू होती है 9.8, आप उसे राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपने डेसिमल को अवॉइड करना है। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हो सकता है कि आपके पास अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करो तो आपके पास हो ये कि आपको सिंप्लीफिकेशन में मतलब कैंसिल आउट होने में हेल्प हो जाए, इजीली कैंसिल आउट हो जाए उस तरीके से। सो आपने ये चीज देखनी होती है कि आप पाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो,
ठीक है, 3.13 भी पुट कर सकते हो 22/7 बेस्ड ऑन कि आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे तो सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकोगे। ठीक है, फोर्स एंड मोशन में कभी कभी आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है कि बेसिकली हो क्या है। आप चीज को विजुअलाइज करोगे तो ही समझ आएगा। देखो, लेट्स से उसने आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि आपने एक ब्लॉक को इस तरीके से रखा, उसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपने ये चीज फाइंड करनी है। आप उसको विजुअलाइज नहीं करोगे, उसे समझोगे नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज नॉट लाइक आपने देखा कि क्या क्या है, एक फॉर्मूला दिमाग में सोचा और उसको उसके ऊपर बस अप्लाई करना, ऐसे नहीं करते। कभी कभी क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है जितना वो लग रहा होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर सिनेरियो कि उसने क्वेश्चन किस एस्पेक्ट में पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन से क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, कोई बात इनडायरेक्ट तो नहीं उसने कह दी, जिस तरीके से उसने कह दिया बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की, दैट इज गोना बी 0। ये चीज आपने खुद इन्फर करनी है, वो नहीं लिखेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो कह देगा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, या फिर लेट्स से अगर वो कह देता है कि आपने एक चीज को फ्रीली फॉल का केस है, तो फ्रीली फॉल जब होता है तो उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अब वो डायरेक्टली नहीं आपको बता रहा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उसने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, बल्कि आपको इस चीज को खुद इन्फर करना था कि सिंस यहाँ पे उसने लिख दिया कि थ्रो का केस है तो थ्रो में इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फ्री फॉल का केस है तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। थ्रो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। फ्री फॉल हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। जब आप एक चीज को छोड़ोगे वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती किसी भी तरीके से। ठीक है, तो जो फ्री फॉल होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, और जो थ्रो होता है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, और थ्रो में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी आपके पास होती है। ठीक है, अदर देन दैट, अगर आपके पास रूट्स में आंसर आ जाए, लेट्स से अगर वो आपको दे देते स्क्वायर रूट 20, तो आपने क्या करना है मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के। अगर आपको लेट्स से ऑप्शंस दिए हुए हैं पॉइंट्स में, या लेट्स से फ्रैक्शन में, या होल नंबर दिया हुआ है, और आपके पास जो जहां तक आपने सॉल्व किया स्क्वायर रूट 20 पे आके आप लोग रुक गए हो, फंस गए हो, आगे क्या करना है। लेट्स से हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट 20 तक आके आपके पास आंसर आ गया है, आगे आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेती हूँ। Is this way correct that what if we learn the summary of the chapter along with the MCQs and some concepts and practice MCQs? Because this is way, हाँ, आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को 100% मास्टर करो और फिर एमसीक्यू करने की तरफ आओ। थोड़ा सा चैप्टर आप एक दफा गो थ्रू करो, ठीक है, और फिर एमसीक्यूज करो। ठीक है, हमेशा कभी परफेक्शन का वेट नहीं करना कि ये चैप्टर 100% थ्योरी हो जाएगी तो एमसीक्यू स्टार्ट। देखो, होता ये है कि अगर आप 100% थ्योरी करके भी सॉल्व करोगे ना एमसीक्यूज, तो तभी एमसीक्यूज गलत होंगे। एमसीक्यू इज नॉट रिलेटेड टू आपके थ्योरी। अगर आपको थ्योरी मास्टर हो भी गई है तो एमसीक्यू इज अ डिफरेंट थिंग। इवन अगर आप किसी सिंपल सब्जेक्ट की भी बात करते हो ना, जैसे हम बायो की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, उसमें तो आपको थ्योरी आती है और फिर भी एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। फिजिक्स में तो चलो कह सकते हो ना कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, सॉल्व करने में मसला आ गया। तो ये चीज कभी भी ना समझना कि आपने थ्योरी मास्टर कर ली तो आप एमसीक्यू सॉल्व इजीली कर लोगे। एमसीक्यू सॉल्व करना एमसीक्यू सॉल्व करने से ही आएगा। तो यू डू नॉट हैव टू लाइक वेट कि आप पूरी थ्योरी मास्टर कर दो तो फिर एमसीक्यू स्टार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, 4.4 राउंड ऑफ करके अंडर रूट 4 लगे इजी। देखो सिंपल इसमें आपने करना ये है कि आपने देखना है परफेक्ट स्क्वायर्स को। 4 4s आर 16 होते हैं, 5 5s आर 25 होता है। अब ये जो स्क्वायर रूट 20 है, ये वैल्यू आ रही है बिटवीन 16 एंड 25, इसका मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग होगी वैल्यू, तभी आपके पास 4 और 5 के दरमियान आ रहा है ना ये। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह देती हूँ स्क्वायर रूट 200, अब क्या करोगे, आपने परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज याद रखनी है। टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 63, 9 81, 10 100, 11 121, 12 का होता है आपके पास 12 का होता है 144, 13 169। ठीक है, 14 15 का भी इस तरीके से। अगर आपको स्क्वायर रूट 200 का कह दिया जाए तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो अब आपके पास नियरेस्ट वैल्यू किसकी बन रही है, 14 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 14 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 200, है ना। तो आपने इस तरीके से करना है। ठीक, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं गिवन तो आपने नियरेस्ट पॉसिबल पे जाना है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट मैनुअली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव रिवाइज द फॉर्मूला शीट डेली। ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाओ, उसको डेली रिवाइज करो। टेस्ट का बच्चों आगे आप लोगों के साथ लिंक शेयर होगा। ठीक है, आगे आप लोग उसको यूज करके उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, यूज यूनिट एनालिसिस टू किल द रॉन्ग ऑप्शंस। देखो अब इसमें मैं बताती हूँ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी वो दे देता है और वो बताता ही नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या। आप लोगों को हुआ होगा ना, आप लोगों के साथ ऐसा कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक वैल्यू उसने दी हुई है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये है किसकी वैल्यू। मुझे बताओ ऐसा हुआ है कभी कि नहीं। लेट्स से
एक आपको इतनी लंबी स्टेटमेंट उसने दी दी है, बीच में इतनी ज्यादा वैल्यूज लिखी हुई है, लेकिन आपको उस स्टेटमेंट में उसने इतना इबाम रखा हुआ है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो वैल्यू है ये है किस चीज की वैल्यू। होता है कि नहीं होता? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डू फेस, क्योंकि ऐसा होता है। बट आई जस्ट वुड लाइक टू हियर सम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? एंड आई एम गोना टेल यू हाउ टू सॉर्ट दिस। सो डिड यू गाइज एवर फेस सच ए सिचुएशन? होता है। चलो, इसमें आपने करना ये होता है, आपने सिंपली यूनिट देखना है। ठीक है, यूनिट देखो और यूनिट देख के आपको पता चल जाएगा। लेट्स से यूनिट लिखा हुआ है टेस्ला मीटर स्क्वायर। आपको जो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखा हुआ है दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपने यूनिट देख के, अब आपको फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट का मास्टर होना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है, इसी तरह एलिमिनेशन मेथड किस तरह हेल्प करता है, ये चीज मैं समझा देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड इस तरह हेल्प करता है कि लेट्स से अगर उसने आपसे पूछा हुआ वेलोसिटी बताओ और एक ऑप्शन उसने न्यूटन में दिया हुआ है, एक ऑप्शन उसने दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूटन में वेलोसिटी तो हो नहीं सकती ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वेलोसिटी हो सकती है। तो आप इस तरह यूनिट्स को एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन, टेस्ला मीटर स्क्वायर अगर है सो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्सीलेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। और जो वेबर है, देखो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, आई होप आई कैन राइट हियर। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। फ्लक्स किसके इक्वल होता है? वेबर के। बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर टेस्ला मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लक्स। ठीक है, इस तरीके से आपने जानना होता है। अच्छा, ऑल्सो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है ना, वो ये होता है कि वो आपसे पूछ लेता है कि इसको बेस फॉर्म में या न्यूटन मीटर की फॉर्म में लिखो। तो अगर आपको लेट्स से टेस्ला को लिखना हो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर, तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे? देखो, हमें पता है F इज इक्वल्स टू आई एल बी, आई एल बी। अब टेस्ला बी का यूनिट है, तो आप बी को अकेला छोड़ दो, आपके पास बच जाएगा बी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय आई एल, दैट इज इक्वल टू बी। अब आपने यूनिट लिख देना है। आपके पास यूनिट क्या आ गया? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का एम्पेयर और लेंथ का मीटर। तो आपके पास आ गया न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। ठीक है, सो टेस्ला किसके इक्वल है? न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। अगर मैं पूछूं वेबर किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर और एम्पेयर की फॉर्म में लिखना है टेस्ला, तो हमें पता चल गया दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। अगर सेम चीज मैं आप लोगों से पूछूं फ्लक्स के उसके लिए, वेबर के लिए, तो वेबर को इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर बताओ। अगर वेबर का मैं पूछूं तो वेबर को इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर कैसे बताओगे? जल्दी से सॉल्व करके बताओ। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली खुद सॉल्व करो। देखो, दोनों चीजें आपको गिवन है। वेबर का टेस्ला के साथ क्या रिलेशन है, टेस्ला का न्यूटन और मीटर एम्पेयर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना स्टेटमेंट में वो आपको बहुत ज्यादा क्लूज दे रहा होता है। ठीक है, कि आपने इसको सॉल्व इस तरीके से करना है। आपने स्टेटमेंट को, अच्छा एक और चीज बताती हूँ, लेट्स से कुछ भी नहीं आ रहा ना आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ टॉपिक का अंदाजा ही नहीं है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, और एमसीक्यू सामने गिवन है। आपने स्टेटमेंट को ना समझना है, नॉट इन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, एज इन जनरली स्टेटमेंट को रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, जहन में कुछ भी इमेजिन करो, जो भी वहां हो रहा है उसको रियल लाइफ से अप्लाई करो, कुछ ना कुछ तो आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा ही। तो क्वेश्चन की मुश्किल स्टेटमेंट देख के गिव अप नहीं करना। ठीक है, उसको अप्लाई करो रियल लाइफ में, कुछ किसी तरीके से कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जो आपको लग रहे हैं यूनिट की फॉर्म में, या फिर जो बिल्कुल ही वियर्ड कॉन्सेप्ट है, कि जो बिल्कुल अपोजिंग कॉन्सेप्ट है, उसको एलिमिनेट करो। और एंड पे देखो, अगर आपके पास 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो ना, तो आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी कि आप सही को टिक करोगे। अगर आपको चारों में से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देयर इज अ 25% प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस कि आप 4 ऑप्शन में से एक सही चूज कर लोगे। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड इज रियली इंपॉर्टेंट। सो यस, एक्सीलेंट। न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है, क्योंकि टेस्ला को मैंने मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना वेबर। यहाँ पे मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास न्यूटन मीटर पर एम्पेयर बनता है फॉर वेबर। एक्सीलेंट एवरीवन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड,
मुझे ये बताओ कि राइट नाउ इट इज हाई टाइम कि यू गाइस स्टार्ट रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एंड स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, लाइक स्टार्ट डूइंग एज मेनी एमसीक्यूज एज यू प्रैक्टिकली पोटेंशियली कैन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एमसीक्यूज अभी सॉल्व करना शुरू कर दो, थ्योरी की रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर लेते हो, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट कि ये कॉन्सेप्ट मैंने मास्टर कर लिया है? अच्छा, जस्ट टेल मी योर आंसर्स कि अगर आप एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेते हो तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब मुझे ये कॉन्सेप्ट मास्टर हो गया? क्योंकि रिविजन, पहली बात वो भी मैं बता देती हूँ रिविजन किस तरह करनी है। रिविजन पैसिवली नहीं करनी कि किताब खुली रीडिंग स्टार्ट कर दी रिविजन होगी, ऐसे रिविजन नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों ने रिविजन एक्टिवली करनी है। एक्टिव रिविजन की क्या तरीके हैं? एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल किस तरीके से कर सकते हो? वन ऑफ द बेस्ट वे दैट आई कैन सजेस्ट यू इज एक टॉपिक लो, शीशे के सामने खड़े हो, ऑल यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, स्टार्ट सेइंग इट आउट लाउड, ठीक है, और एंड पे अपनी बुक से देखो कि क्या चीज नहीं बोली और उसको एक पेपर पे लिख लो। और वो चीज वो है जो आपने बार बार रिवाइज करनी, क्योंकि वो आपको नहीं आती। क्योंकि देखो, अगर आप एक बुक को रीड करते रहोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या चीज भूली हुई है, ये नहीं समझ आएगा unless and until you test yourself। तो थ्योरी को टेस्ट करने का तो ये तरीका है कि आप एक्टिव रिकॉल से रिवीजन करो। लेकिन फिजिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, इट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी। जो चीज समझी है उसको आपने रियल लाइफ में अप्लाई करना है। रियल लाइफ केसेस दिए हुए हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हो सकते हैं। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को करनी है, दैट इज बेसिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग पूछोगे कि अभी कैसे करें, ठीक है। सो प्रीमेड हैज गॉट यू अबाउट दिस, ठीक है। प्रीमेड आपको ऑफर कर रहा है ग्रैंड मॉक्स, एंड दीज ग्रैंड मॉक्स आर लाइक फ्री, नो कॉस्ट एट ऑल, फ्री आप इसको कर सकते हो। सो वी हैव फ्री ग्रैंड एमडीकैट मॉक्स एंड दे आर प्रोविंशियल, ठीक है, आपको प्रोविंशियल मॉक्स भी मिलेंगे। सो this is not regular mocks, these are the province wise guest papers according to the latest PMDC syllabus. Since इस year PMDC का syllabus change हुआ है, it is like almost you can say it is like a 180-degree change. बहुत ज्यादा changes आई हैं. Some of you might even be confused कि यार ये जो chapters नए ऐड हुए उनको cover किस तरीके से करने हैं. And we have special gifts for the winners as well. So don't forget to make sure that you guys are attempting these mocks, because mocks before the actual exam is like really important. Also अगर वो time mode में है जो कि प्रीमेड आपको ऑफर करता है, that is gonna be the cherry on top of your preparation. ठीक है? So that is like really important. You need to know where you stand before the actual exam. So आपको ये बहुत आपके लिए जरूरी है कि आप इन मॉक्स को अटेम्प्ट करो, and since they are free for everyone, so I encourage all of you to make sure to check where you all stand. ठीक है? So इन मॉक्स को बिल्कुल नहीं भूलना. Make sure you stay tuned and solve these mocks for free. Talking about time management. Time management बहुत important है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, and even in every other subject, time management is like the most important thing. देखो, आपने करना ये है कि आप जब पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो स्टार्ट डूइंग विद दोस क्वेश्चंस दैट यू नो 100%, ठीक है, कि आपको ये आते हैं, जो 100% आते हैं ना उससे स्टार्ट करो, ठीक है। और जो कंफ्यूजन हो रही है, फंस रहे हो, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और ये किस तरीके से करना है, उसको स्किप कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो, यू डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन द क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, और उसको उसमें आप लगे रहोगे तो जो आता होगा एंड पे हो सकता है टाइम ही खत्म हो जाए और जो आते हैं आपके वो भी रह जाए। सो फर्स्ट गो में आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको 100% आते हैं, नो गेसेस नथिंग, फर्स्ट गो में वो सारे सॉल्व कर दिए। फिर सेकंड गो में आपने क्या करना है कि सेकंड गो में आपने ये करना है कि जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डाउट है या फिर सॉल्व करने या बहुत लेंथी हो रहे थे फर्स्ट गो में, आपने वो सॉल्व करने, ठीक है। अब आपके वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं या जिनमें हल्का सा 1% डाउट था वो आपने सॉल्व कर दिए। फिर थर्ड गो के लिए उन क्वेश्चंस को रखो जिनका आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, जिसमें आपने सो कॉल्ड तुक्के मारने, ठीक है। तो उनको फिर थर्ड गो के लिए रखो, ताकि अगर आपका थर्ड गो तक टाइम खत्म भी हो जाए तो जो क्वेश्चंस आपको आते थे वो आप कर लो। एंड सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू गाइस कैन गो फॉर एनी ऑप्शन एंड डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनमार्क्ड, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मसला होगा कोई नहीं। आप लोगों ने अगर नहीं भी आता तो रफ गेस करो, हो सकता है सही हो जाए, अगर ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो आपने हर क्वेश्चन को मेक श्योर करना है कि आप 1 मिनट से कम में सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज आपको पेपर पैटर्न जो पेपर होगा रियल लाइफ आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। टफ वंस को स्किप कर दो, वही वाली बात, उनमें वापस आ जाना एंड पे, ताकि आप लोगों को जो आते हैं अच्छे आते हैं वो ना रह जाए इसमें कि आप लोगों ने टफ वालों में टाइम जाया कर दिया। फिर जो डाउटफुल एमसीक्यूज हैं उनको मार्क कर दो, उसको सर्कल कर दो,
कुछ भी कर दो। अगर आप प्रीमेड यूज कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो, क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हो एंड यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन लेटर। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में बात करें, अगर आप MD-CAT अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को सर्कल कर लो। ठीक है, और हाँ एक और चीज, जब बबल शीट सॉल्व कर रहे होते हैं ना, ये चीज बहुत हो जाती है कभी कभी। बबल शीट सॉल्व करते हुए ना आप इस तरह किया करो कि यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर बोला, क्वेश्चन 20 का बबल शीट में देखो क्वेश्चन 20 का अल्फा, इस तरीके से प्रैक्टिस अभी से ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे बोला करो करते हुए क्वेश्चन 20 का ये, ताकि अगर आप लेट से 21 स्किप भी कर रहे हो तो आप 22 का आंसर 21 के बबल में ना फिल कर दो। जब आप बोलोगे ना 21 का ये, 22 का अल्फा, 23 का बीटा बोल बोल के करोगे तो आप बबल शीट में भी वो ढूंढोगे 21 कहाँ है, 21 का बीटा। अगर आपने 20 स्किप भी किया हुआ होगा तो आप 20 की जगह फिल नहीं कर दो, क्योंकि इस तरीके से कभी कभी ये होता है पूरी सीरीज गलत हो जाती है, आपको आता भी होगा ना, चीजें गलत हो जाती हैं। तो इस चीज को बोल बोल के करो कि 20 का ये, 21 का ये, 30 का ये, इस तरीके से अभी से प्रैक्टिस ऐसे स्टार्ट करो ताकि आगे जाके ये चीज मस्ता ना करे। ठीक है, फिर आपके पास जो आखिरी वाला टाइम है, एंड वाला, जो फ्लैट क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते थे, जो आपने मार्क किए कि इनको मैं एंड पे देखूंगा या देखूंगी, उनको आपने एंड वाले टाइम पे रिव्यू कर लेना है। क्योंकि लेट्स से अगर आपको नहीं आते और आपके गलत ही होने हैं तो आप उनमें टाइम क्यों जाया करो, और वो क्वेश्चन क्यों आपके रह जाए जो आपको आते हैं। ठीक है, स्मार्ट तरीके से इसको लेके चलना। नेक्स्ट वी हैव न्यू चैप्टर्स। सिंस आपको पता है कि आपके पास नए चैप्टर्स आए हैं 2025 अपडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें आपके पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, फ्लूइड डायनामिक्स एंड अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें मुझे बताओ कि आपको कौन से टॉपिक्स बुरे लगते हैं इन चैप्टर्स में, चैट बॉक्स में लिखो। Also make sure you stay till end to get the surprise that we have for you. जो end तक रहेंगे उन्हीं को सिर्फ वो surprise मिलेगा. Even if you see the recording, you guys will miss it. So make sure, I'm like really excited for you guys. That surprise gift that is like so special to us, and we're sharing that with you for free. So make sure you guys stay till the end to get to know what the surprise actually is. ठीक है? अच्छा. So वेक्टर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, होल, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स, वेक्टर्स। अच्छा मैं टॉपिक्स का पूछी थी। नो चैप्टर इज डिफिकल्ट, मुझे इनमें टॉपिक्स बता दो। अच्छा देखो, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आसान है, इसमें इतना कुछ है नहीं। इसमें आपको समझना है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें इस चीज को मास्टर कर लो। जैसे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करती हूँ ना, मैं आपको 2-3 बातें बता देती हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए आप लोगों की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की, हमने इसमें करना ये है कि आपने 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है। स्टार्ट आपने इस बात से करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम बात करेंगे 2 वेक्टर क्वांटिटीज की। देखो स्केलर क्वांटिटी को आपने ऐड करना है या प्रोडक्ट लेना है, आसान है ना। मैं कह दूं 2+3 आप कह दोगे 5, मैं कह दूं 2 × 3 आप कह दोगे 6। ठीक है, जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं कह दूं कि आपने कर देना है 2 किलोमीटर वेस्ट प्लस 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप इसमें 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट नहीं कहोगे, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, आपको डायमेंशन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, उसको प्रॉपर ड्रॉ करके आपने उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, सो वेक्टर्स इज नॉट दैट सिंपल जैसे आप स्केलर क्वांटिटीज कर लेते हो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इट्स नॉट एज इफ कि ये बहुत कोई रॉकेट साइंस और आप लोगों से होगा नहीं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है और वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। अब हियर इज द ट्विस्ट कि लेट्स से आपने 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो स्केलर आ रही है। आसान हो गया ना ये तो कितना, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इतना सिंप्लीफाइड आएगा कि आपको डायरेक्शन की परवाह नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, सो वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हो? क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आ रही होती है, उसमें आप ए डॉट बी करते हो, जो थीटा यूज होता है दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्टेंट भी वेक्टर आती है। यानी अब यहाँ पे आपकी डायरेक्शन से जाननी छूटी, आपने उसको इंक्लूड करना है लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको मल्टीप्लिकेशन करना, बट नॉट दैट अनडूएबल। ठीक है, हर चीज हो सकती है, यू जस्ट नीड टू हैव लाइक सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस फॉर इट। ठीक है, सो इसमें आपने क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट आ रहा होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और उसमें आप साइन थीटा यूज करते हो, कॉस थीटा यूज नहीं होता। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने थीटा की वैल्यूज याद रखनी है, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360।
ये सब वैल्यूज याद रखनी है, और मेक श्योर कि आप वैल्यूज फ्रैक्शन में याद रख रहे हो, डेसिमल में नहीं। डेसिमल को सॉल्व करना मसला बन जाएगा, फ्रैक्शन में आप इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रैक्शन में इसको याद रखना लाजमी। अगर हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें, फ्लूइड डायनामिक्स इज लाइक इजी चैप्टर, मुश्किल नहीं है, समझने वाली चीज है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? आसान तरीका, जब आप छोटे होते थे, इफ यू लाइक सेटिंग इनसाइड द कार, बाहर बारिश हो रही है, तो आप ऑब्जर्व करते थे कि जो आगे विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर पानी के कतरे गिर रहे होते हैं, पर उस टाइम कतरों की रेस होती थी कि ये कतरा पहले पहुंचेगा, ये कतरा बाद में पहुंचेगा। पर क्या वो रेस स्टिल होती है जब एक कतरा आसमान से जमीन पे आ रहा होता है? यस और नो? If you like observe कि a raindrop is falling from the sky coming towards the earth, is there still some sort of race between the raindrops as in their velocity, कि ये तेज आ रहा है, ये आहिस्ता आ रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये जल्दी पहुंच गया, इसकी स्पीड कम है, ऐसे होता है क्या? Talking about the raindrops coming directly from the sky. ऐसा होता है उस टाइम कि आप कहो कि ये वाला जो रेन ड्रॉप है वो जल्दी, उसकी स्पीड ज्यादा है, ये वाला मुझे जोर से आके लगा या हल्का सा आ गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो जब हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, जब आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, तो जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, दैट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए आपको एक थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है। अब ये नहीं है कि मैं खड़ी हूँ और मैंने ऊपर से कोई चीज फेंकी तो मैं कहूँ टर्मिनल वेलोसिटी, वो एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि उसको इतनी आपने जगह ही नहीं दी ना कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो सके। आपको जगह ज्यादा चाहिए, आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है। अब आसमान से लेके जमीन तक डिस्टेंस तो है, तो जब वो आ रही होती है रास्ते में, उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वो अचीव कर लेती है, दैट वेलोसिटी इज बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। फ्लूइड ड्रैग की बात करें तो, अब एक और एग्जांपल देती हूँ। आप अपने हाथ को गाड़ी के शीशे से बाहर निकालो, गाड़ी चल रही है, आपको एक फोर्स फील होगी, एक अपोजिंग फोर्स अपने हाथ के ऊपर। जनरली जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो हम लिक्विड्स को फ्लूइड कंसीडर करते हैं एज एन दे फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड, वो आपके पास एक प्रॉपर बाय डेफिनेशन फ्लूइड है। गैसेस वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करते, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो। जनरली जब हम फ्लूइड की बात करते हैं ना टेक्स्ट बुक वाइज, तो हम कहते हैं कि फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। सिंस आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो तो हम कहते हैं कि ये इतने ज्यादा हम उसको है फ्लूइड, लेकिन इतना परफेक्ट फ्लूइड नहीं हुआ है, ठीक है, जितना आपके पास लिक्विड होता है, ठीक है। सो वो जो आपने ऑपोजिशन को फेस किया, या आप स्विम कर रहे हो पानी में, पानी वाले फ्लूइड की एग्जांपल लेते हैं, जब आप पानी में स्विम कर रहे होते हो, स्विमिंग कर रहे होते हो, तब भी आपको एक अपोजिशन फोर्स फील होती है, दैट इज बेसिकली द फ्लूइड ड्रैग, या ड्रैग फोर्स आप कहते हो, ठीक है। फ्लूइड फ्लो के फिर टाइप्स होती हैं, ठीक है। आपके पास टर्बुलेंट फ्लो होता है और आपके पास लेमिनर फ्लो है। लेमिनर फ्लो में आपके पास आराम से, जैसे आपने एक धागा दिया, उसके ऊपर एक पानी के कतरे को छोड़ दिया, धागा कितने, पानी का कतरा इतने आराम से धागे से आएगा, स्लो वेलोसिटी के साथ, है ना, दैट इज द लेमिनर फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की जब हम बात करते हैं, लेट्स से वाटरफॉल से पानी नीचे गिरा, आपके पास एक क्योटिक मूवमेंट है, पानी इधर उधर, मतलब पानी के छींटे जा रहे हैं स्टफ, दैट इज बेसिकली द टर्बुलेंट फ्लो। फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जिसमें आप ये कहते हो कि एक्सेलरेशन, एरिया जो है और वेलोसिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। आपने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेट्स से आप पानी को, पौधों को पानी दे रहे होते हैं, जो पाइप का फ्रंट एंड होता है जहां से आप पौधे को पानी दे रहे हो, उसकी जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी छोटी रखी जाती है, क्योंकि आपके पास ओपनिंग छोटी होगी, एरिया कम होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा, ठीक है। बर्नौली से हम प्रेशर की और वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में बेसिकली आपको समझना ये है, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर भी बहुत आसान है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपने समझना ये है कि पहले बात तो ये, मुझे ये बताओ कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ये चीज हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके अलावा ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में कहाँ से आ रहा है? जो बैटरी लगाते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट है या वो डायरेक्ट करंट है? और अगर बैटरी ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है तो हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट? ये चीज बताओ। In the end, we have a test for you जो आप लोग solve करोगे. Other than that, we have a surprise, and other than that, we have a free grand mock जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, and we'll be talking about it in detail again. So yeah, make sure to stick till the end to get to know about the surprise. I'm so excited about it. So yeah, don't miss the surprise. ठीक है। अच्छा, बैटरी इज डायरेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ट्रांसफार्मर, एक्जैक्टली। जो आपके घरों में बिजली आ रही होती है ना, जो लोड शेडिंग की वजह से चली जाती है, दैट इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट, वो जो आपको ट्रांसफार्मर से मिल रही है। और जो आप बैटरी लगा के यूज करते हो, दैट इज बेसिकली डायरेक्ट करंट। अब कुछ हमारे घरों में डिवाइसेस ऐसी होती है, उन्हें चाहिए होते हैं डायरेक्ट करंट, लेकिन आपके घर में जो आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। और लेट्स से अगर कोई बड़ी अप्लायंस है तो उसके साथ आप बैटरी भी नहीं लगा सकते, उसके लिए क्या होता है? सिंपल, आसान है,
we are interlinking the concepts of multiple chapters. It is like really important. You need to do that for MCAT preparation. ठीक है, interlink करना various concepts को is really important. Different chapters के concepts को combine किया करो. ठीक है. Also जो अगर आप लोगों को ग्रैंड मॉक का लिंक चाहिए, that I know you guys must be so excited about and so desperate and eager that you guys must be, that you guys should be. तो उसके लिए आप लोग एक WhatsApp लिंक देख लो जो कि एक चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है. ठीक है, उसको ज्वाइन करना. मेक श्योर यू ज्वाइन दैट सो यू कैन एक्सेस द ग्रैंड मॉक, सॉल्व इट फॉर फ्री. मेक श्योर यू गेट टू नो कि आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ पे है. अकॉर्डिंगली अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथन करो बिफोर द MCAT एग्जाम. ठीक है. अच्छा, उसके लिए हम कन्वर्टर नहीं सोचो पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था. इतनी हिंट दे देती हूँ. इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में. एक ही टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस में. अब खैर डायोड भी हो गए, वरना वो एक ही होता था. रेक्टिफिकेशन, एक्सीलेंट, सुपर्ब. ठीक है. सो रेक्टिफायर वो डिवाइस है. रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिससे आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहे होते हो. ठीक है. तो इस तरीके से इसको समझना है. अब अगर आप एक रेजिस्टर के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स अटैच करते हो तो आपने देखना है करंट लीड कर रही है या करंट लैग कर रहा है. ठीक है. रेजिस्टर में ये इन फेज होते हैं. आपके पास इंडक्टर, एल इज इंडक्टर एंड सी इज फॉर कैपेसिटर. अगर आप कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करो तो उसमें या वोल्टेज लीड करती है या करंट लीड करता है. ठीक है. और उसमें आपके पास लीड करता है कितना है, बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये चीज समझनी है. फिर अगर लेट्स से मैं आर के साथ एल भी लगा देती हूँ, आर के साथ सी लगा देती हूँ, आर एल सी कर देती हूँ, तो फिर क्या इफेक्ट होता है. इंडिविजुअल इफेक्ट समझोगे तो कंबाइंड इफेक्ट समझना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है. आपने एमसीक्यूज ऐसे प्रैक्टिस करने हैं जो कि आप प्रीमेट से देख सकते हो. प्रीमेट पे आपके पास आपको मिल जाएंगे इन सारी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू. डेफिनेटली पास्ट पेपर्स नहीं है क्योंकि ये थे नहीं पहले, तो पास्ट पेपर्स इसके हैं नहीं. तो इन ऑर्डर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग प्रीमेट का क्यू बैंक है वहां से देख सकते हो. वहाँ पे चैप्टर्स प्रेजेंट है, मौजूद है. मेक श्योर यू गो थ्रू देम वंस, ताकि आपको पेपर में पहली दफा आप एमसीक्यूज इन चैप्टर्स के फेस ना करें. आप लोगों को आइडिया हो पहले से कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एफएससी एंड एमडीआई दे लाइक डिफरेंट, दे आर वे टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. आपके पास मेक श्योर करना कि आप थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हो कि किस तरीके से इन चैप्टर से एमसीक्यू आ सकते हैं, ताकि जब पेपर में आए तो आप लोग परेशान ना हो जाओ. ठीक है. ग्रैंड मॉक के लिंक के लिए आप लोग देखो चैट बॉक्स के अंदर प्रीमेड के जो चैट है उसमें एक लिंक जो है दैट इज पिन्ड. अपने चैट बॉक्स के बिल्कुल टॉप पे देखो तो एक मैसेज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो. वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा. ज्वाइन दैट टू गेट द डिटेल्स अबाउट द मास्टर क्लासेस. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट निमोनिक्स एंड मेमोरी हैक्स. अब राइट हैंड रूल है हमारे पास, डिफरेंट हैंड रूल्स हैं. आपने ये याद रखना है कि थंब जो है वो क्या शो कर रहा है, मिडिल फिंगर क्या शो करिए, फर्स्ट फिंगर क्या शो करिए. फिर हमारे पास पाम रूल है, जिस तरह अगर हम कहें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, हमारे पास राइट हैंड पाम रूल है. ठीक है. इस तरीके से याद करना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो भी आपने याद करना है कि आपके पास सबसे पहले रेडियो वेव्स हैं, फिर आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, फिर इंफ्रारेड है, फिर यूवी है. ठीक है. फिर आपके पास एक्सरे और फिर गैमा रेज है. तो देखो, रेडियो वेव्स आर, माइक्रोवेव्स एम, इंफ्रारेड आई, यूवी, यहाँ ये वी जो विजिबल है, फिर ये यूवी और फिर ये एक्सरे. और विजिबल में भी ना आपके पास वेब वायर आ जाते हैं. तो वेब वायर यहाँ से वी नहीं लिखना, एंड से वी लिखना है. यानी वेब वायर उल्टा लिखना है. रेड से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉलेट में एंड करना है. ठीक है. फिर हमारे पास न्यूटन के लॉज हैं. फर्स्ट लॉ इज अबाउट इनर्शिया. लेजी है, हम पढ़ें कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मूव करे तो मूव करते रहना चाहेगा. अगर वो रेस्ट से मैं उसको मूव कराना चाहिए तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी. जो सेकंड लॉ दैट इज अबाउट द पुश. ठीक है, कि F इज इक्वल टू ma. जब मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. थर्ड लॉ ये है कि मैंने अगर एक चीज में फोर्स अप्लाई की तो वो चीज उतनी ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक रिएक्शन फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई करेगी. ठीक है. जिस तरह आप चलते हो, कभी आपने ये सोचा कि आप चलते कैसे हो? हाउ, लाइक थोड़ा सा स्टडी करो, खुद सोचो. I'm gonna give you some time to think about it. How do you guys walk? फोर्स आप कहाँ लगाते हो? देखो, खुद सोचो. पाँव को आप कहाँ मूव करते हो और चल आप आगे रहे हो? तो इस चीज को थोड़ा सोचो और मुझे चैट बॉक्स में बताना. दिस इज लाइक एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. Yes, it is gonna be ROYGBIV. ठीक है. There was the student of mine who told me that you can say it as रोएगी बीवी. So yeah, this is like a great way to remember this. ठीक है. So आप इस तरीके से याद कर सकते हो अगर वेब गॉय का उल्टा याद करना है. ठीक है. अच्छा, व्हाट वाज द क्वेश्चन आई वाज ट्राइंग टू आस्क. या हम जमीन पे, हाँ एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट आप चलते कैसे हो. यस. फोर्स आप लगा रहे हो तो पीछे की तरफ.
मूव आप कर रहे होते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलेंट। देखो आप अपने पाँव से जमीन पे फोर्स लगा रहे हो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जमीन आप पे रिएक्शन फोर्स लगाती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप आगे की तरफ चलते हो, ठीक है। सो आपके पास दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि आप दुनिया में कोई भी एक्शन फोर्स लगाते हो तो उसकी रिएक्शन फोर्स भी प्रेजेंट होती है जो कि लग रही होती है, ठीक है। ओके देन फ्लूइड डायनेमिक्स में फास्ट फ्लो है तो प्रेशर कम होगा, दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, जितना फ्लो फास्ट है उतना प्रेशर आपके पास क्या होगा, दैट इज गोना बी लेस, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द पास्ट पेपर पैटर्न, अच्छा आपने एक्सपेक्ट क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है और वो ट्रिकी एमसीक्यू भी आ सकता है, कुछ भी आपको आ सकता है, ठीक है। आपने अपनी प्रैक्टिस इतनी वास्ट रखनी है कि, अच्छा एक और चीज मैंने यहाँ पे एड्रेस करनी थी, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि हमेशा ना अपना फोकस हार्ड एमसीक्यूज पे रखते हैं कि मुश्किल से मुश्किल तरीन एमसीक्यू आपने करना है, पर पेपर में इतना आसान एमसीक्यू आ जाता है कि वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपने वो कहते हैं इतना आसान आ कैसे सकता है, मैंने तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस किए थे, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात, ऐसे आप लोग करते होगे वैसे, है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा, और फिर उसको आप अजीब तरीके से रिलेट करते हो, वेट तरीके से रिलेट करोगे, खुद को कंफ्यूज करोगे और गलत आंसर को मार्क कर दोगे, ऐसा होता है कि नहीं, इस चीज को कैसे अवॉइड करना है। अच्छा मुझे बताओ किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि एक सिंपल क्वेश्चन को आपने पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ी, आपने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एमडी कैट में इतना सिंपल सवाल आ जाए, कुछ तो होगी पीछे इसकी रॉकेट साइंस जो मुझे समझ नहीं आ रही, आई माइट बी द डम वन, पर ऐसा होता नहीं है। एंड पे आप कहते हो यार ये तो इतना आसान सवाल था, मुझे मैंने एम ही इतना ओवर थिंक कर लिया इसको, इसमें तो सिंपल आपने आंसर देना था, कुछ मसला था ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड और डू फेस दिस व्हाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ऐसा होता है कि नहीं होता, हुआ है आप लोगों के साथ, या लाइक सो मेनी रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अच्छा होता है एग्जैक्टली, ठीक है, आई गेट दैट। अच्छा सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से अगर आपको कोई पेपर दिया जाए, आप सॉल्व करें, यार ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्यों दिया हुआ है, मतलब ये कहाँ आता है, ये कौन करता है, ऐसे करके स्किप कर देते होगे ना, ये काम नहीं करना। अपनी प्रैक्टिस के अंदर डाइवर्सिटी रखो, सिंपल क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी। सिंपल को स्किप कर दोगे तो आप अपने माइंड को प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे कि यार ऐसी चीज भी आ सकती है, आपका दिमाग समझे कि यार नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ आसान भी आ सकता है, ठीक है। सो इस चीज को मेक श्योर करो कि आप अपनी प्रैक्टिस में डाइवर्सिटी रख रहे हो। कभी कभी ऐसे होता है कि लेट्स से अगर आप कोई प्रैक्टिस बुक यूज करो, उसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे कि आप देखे कहोगे मैंने तो फेल कर जाना है, मेरा तो हो ही नहीं सकता क्लियर हो किसी भी तरीके से, मेरे तो 100 से ऊपर नंबर भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होने लगा मेरा, पर ऐसा नहीं होता। You need to understand कि it's not always about the difficult questions. हाँ difficult questions कभी कभी आपको ज्यादा करवाए जाते हैं ताकि आपको वर्स्ट की सिनेरियो के लिए प्रिपेयर किया जाए, बट आपने अपने नर्वस सिस्टम को, अपने माइंड को यही नहीं फीड कराना कि यार ये तो आएगा ही मुश्किल, कुछ आसान आ गया तो मेरा ही जहन इतना नहीं है कि मैं उसकी बैकग्राउंड थ्योरी समझ सकूं, कि इनडायरेक्टली मुझसे, इनडायरेक्टली नहीं होता हर चीज, कभी कभी वो डायरेक्टली एक आसान सी चीज पूछ सकते हैं, इट्स फाइन, इट्स पॉसिबल, ठीक है। सो इस चीज को मेक श्योर करो कि आसान सवाल भी करो और मुश्किल सवाल भी करो, ताकि मुश्किल सवाल, जब आसान सवाल आए तो ये ना सोचो कि यार ये तो कोई मुश्किल ही होगा, मुझे ही समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अपनी प्रैक्टिस के अंदर डाइवर्सिटी रखो। सरप्राइज क्या होगा ये तो मैं बताऊंगी, फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा ठीक है। वी आर लाइक अबाउट टू एंड, साइड स्टोरी रह गई है। सो सरप्राइज इज लाइक नियर, मेक श्योर टू स्टे, इतना रुक गए हो तो थोड़ा सा और रुक जाओ टू गेट टू नो व्हाट द सरप्राइज एक्चुअली इज, ठीक है। ओके सो टॉकिंग अबाउट द पास्ट पेपर पैटर्न, आप आसान भी एक्सपेक्ट करो, मुश्किल भी एक्सपेक्ट करो, इट्स नॉट, एंड डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ डम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है, कि एवरीथिंग इज डूएबल, इफ अदर पीपल कैन डू इट सो कैन आई, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। Other than that, you are not dumb at all. You know how to solve questions. You have like worked so hard for it. You have put in so much effort. तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हो कि आपको पता हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, आई एम नॉट गोना मेस अप द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आउट देयर, ठीक है, ये चीज याद रखो, ठीक है। आप डम नहीं हो बिल्कुल भी, आप स्टूपिड भी नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इस चीज को सोचो कि यू आर एलिजिबल टू गिव द टेस्ट, दैट इज समथिंग, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, आपने उसको तो मीट किया ना, तो यू आर नॉट डम एट ऑल, ठीक है। सो अपने ऊपर ये बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस रखो कि यू कैन डू इट, इट्स डूएबल, ताकि आप लोग ये सिंपल चीजों को मैस अप ना करो। कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कहते हो यार मुझे ही नहीं आता होगा, हम पहले ही ऐसी बातें स्टार्ट कर देते हैं, अभी पेपर किया भी नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि मॉक्स करो, मॉक करोगे तो समझ आएगा कि यू आर नॉट डम एट ऑल, अच्छे नंबर आएंगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितने ज्यादा एफएलपीस करोगे, जितने ज्यादा मॉक्स करोगे, उसका स्कोर देखो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैंने उस मॉक में तो इतना अच्छा किया था, तो ये भी तो वही है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन होगा, मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, मैं क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर सकती,
ठीक है, सो मेक श्योर करो कि इस चीज को समझो। आपके पास जो वेटेज होती है फिजिक्स की इन दी एमडीकैट पोर्शन दैट इज 20%। आउट ऑफ द 180 क्वेश्चंस 36 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द फिजिक्स पोर्शन। अब वो 36 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कैलकुलेशन, ठीक है। अगर हम पास्ट पेपर में वेटेज एनालाइज करें तो हमें ये नजर आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वेटेज ज्यादा है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है उसकी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर लाइक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इनको जो हाई यील्ड चैप्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल मास्टर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशन एमडीकैट टेस्ट सीरीज। अभी हमने इतनी बातें डिस्कस की। I told you there's some free stuff and I told you there's some paid stuff. अब what is Operation MDCAT series? Now is the point that you need to know where you stand. ठीक है, अब अगर आपको कुछ नहीं भी आता, सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ, तो अगर आपने अभी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की हुई तो अभी कर लो, आज से, आज रात से, कल पे मत पोस्टपोन करना, ठीक है। आज रात से स्टार्ट करो, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट गाइस, ठीक है। इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया, तो लाइक गिव योर 100%, स्टार्ट ग्राइंडिंग, ठीक है। सो एंड कल पे नहीं, क्योंकि वो कल कभी नहीं आएगी जब आप लोगों ने स्टार्ट करना है, आज ही स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सो ऑपरेशन एमडीकैट टेस्ट सीरीज आपको बेसिकली टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आपको लाइव डिस्कशन मिलेगी ऑफ द टेस्ट जो आप सॉल्व करोगे। आप टेस्ट सॉल्व करोगे और फिर लाइव डिस्कशन होगी उस टेस्ट की, ठीक है। डिस्कशन में होगा ये कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको समझाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है। अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है तो क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ के आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है। मेक श्योर कि अगर you guys like the way I'm teaching here, I will be your physics instructor here in this cohort as well. So अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाह रहे हो physics, so make sure you guys join here, ठीक है। So these are test series जिसमें आप लोग full length MDCAT mocks करोगे, chapter wise और mixed quizzes भी होंगे, performance होगी आपकी, आपको दिखेगा, and improvement की tracking भी होगी कि आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे I'm like falling, ठीक है, यहाँ पे I'm lacking, so I need to work in this area to make myself better, ठीक है। मोटो आपका क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस लाइक इट्स द रियल टेस्ट। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार ये तो मॉक ही है, बैठे हुए हो, अटेंशन नहीं दे रहे, बीच में इधर उधर जा रहे हो, फ्रिज खोल के देख रहे हो, कुछ खा रहे हो, इस तरीके से, ऐसे नहीं होता। 100% अपने तो सोचो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। अच्छा ये भी होता है, कुछ लोगों को ना पेपर की एंजाइटी होती है, हॉल में जाते साथ ही ना मतलब तबीयत खराब सी होना शुरू जाती है, एवरीथिंग। सो देखो, जिस तरह आप अपने घर में बैठ के सॉल्व करो वैसे ही आप उस तरह बैठ के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जितना आपने घर में सॉल्व करो उसी तरह हॉल में बैठे हुए ना। डिफरेंस क्या है? आपने पेपर सॉल्व करना है, आप हो, एक चेयर है, आप बैठे हुए हो और आप सॉल्व कर रहे हो। अब एग्जामिनर ने आपको डांटना नहीं है वहां पे, ठीक है। जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसने आपको नहीं डांटना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। इन्विजिलेटर की साइड से कोई प्रेशर नहीं है, आपने सॉल्व करना है। घर में भी आप विदाउट चीटिंग सॉल्व करो, यहाँ भी आपने विदाउट चीटिंग सॉल्व करना है, तो वही सेम चीज है। आप अपने घर में वो इन्वायरमेंट बनाओ कि आपने इतने अच्छा, ज्यादा लोगों को एंजाइटी होती है कि यार मेरा खत्म नहीं होगा। अब इस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करो ताकि ये एंजाइटी खत्म हो, कि आपको पता हो कि यार मैंने इतनी दफा 180 क्वेश्चंस को 3 घंटे में सॉल्व किया है, तो मैं आगे भी कर लूंगा, या मैं आगे भी कर लूंगी, मसला नहीं है कोई भी, इट्स डूएबल। मैंने पहले ही किया है तो मैं बाद में भी कर लूंगी। अगर आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा तो आप अपने आप को ये एतमाद नहीं दिला सकते ना। ठीक है, कि मैंने पहले किया तो मैं बाद में भी कर लूंगी। सो ऑपरेशन एमडी कैट बेसिकली आपके लिए क्यों जरूरी है कि आप यहाँ पे टाइम्ड मोड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है। आपके चैप्टर वाइज हैं, फुल लेंथ क्वेश्चंस हैं, और इस तरीके से आगे मॉक्स भी होंगे एंड एवरीथिंग। दिस इज पेड। if you guys want to join that, you guys can. And अगर आप लोग अपनी इस चीज को एनालाइज करना चाह रहे हो कि where you stand, make sure you do join that. Surprise is not paid, it is gonna be free. Make sure to stick till the end to find it out. And also जो हमने grand mock की बात की, that is also free. To join that, community का link given है in the chat box. Make sure कि आप उसको join कर लो for the free grand mock, ठीक है। grand mock free है, end वाला surprise free है, this is paid, ठीक है। So you guys can look into it, check the features we're offering, and if that inclines with your interest, make sure to get that for yourself, ठीक है। अच्छा, next, this is the QR code. सारे अपने फोन के कैमरास खोलो, इसको स्कैन करो, ठीक है। And here are some of the questions that you guys need to solve, ठीक है, and this is also free. So this is a QR code. Scan this and let me know once you guys are done, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। सारे स्कैन कर लो ताकि किसी का मिस ना हो जाए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फ्री। सिर्फ वो ऑपरेशन एमडी कैट पेड था, बाकी सब फ्री है, ठीक है। बाकी हम सब फ्री चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो द सरप्राइज एट द एंड इज ऑल्सो फ्री, तो मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड टू फाइंड आउट व्हाट द सरप्राइज एक्चुअली इज। सो
और बच्चों एक हमदर्दाना मशवरा दूंगी कि मेक श्योर यू गाइस सॉल्व लॉट ऑफ एफएलपीज इन 3 आवर्स। ट्राई टू कंप्लीट, बैठ जाओ 3 घंटे बैठे रहो, रात को बेशक सॉल्व करना स्टार्ट करो। आई अंडरस्टैंड दिन में डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस होती है, घर होते हो, कभी कोई बुला लेगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी पानी पीने के लिए उठ के चले जाओगे, कभी कुछ। लेकिन अपने आप को 3 घंटे फिक्स करके दो जिसमें आप हिले बगैर, उठे बगैर चेयर से 3 घंटों में 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि इट्स डूएबल, मैंने पहले ही किया है तो मैं अभी भी कर लूंगा, या मैं अभी भी कर लूंगी। मसला ना, एंजाइटी होती इसी वजह से है कि आप ये सोचते हो कि टेस्ट कैसे सॉल्व होगा, अगर टेस्ट मुश्किल आ गया तो क्या होगा, टेस्ट किस तरह का होगा। अगर आपने पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट इन्वायरमेंट में अपने आप कंसिडर किया होगा, या फिर 180 क्वेश्चन को फेस किया होगा, या पास्ट पेपर ढेर सारी किए होंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इट्स डूएबल, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि जो आप नहीं कर सकते, तो फिर तबीयत खराब नहीं होगी। और मेक श्योर यू गाइस कीप वाटर विद योर सेल्फ, समथिंग स्वीट, ताकि अगर आप लोगों का शुगर लेवल लो हो रहा हो, बीपी लो हो जाए, तो आप लोग कुछ खा लो। मेक श्योर यू गाइस आर हैविंग ब्रेकफास्ट बिफोर द एग्जाम। ब्रेकफास्ट के बगैर नहीं आना, बेशक कुछ लाइट सा ले लो, बट मेक श्योर यू ईटिंग समथिंग, इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, do scan this and let me know if it's not working. I hope it's working. Also, we will be having इस तरह की master classes for other subjects as well. So stay tuned. अगर आप लोगों के पास कोई नहीं ज्वाइन किया हुआ प्रीमेड का व्हाट्सएप कम्युनिटी कोई भी इस तरीके से, ताकि आप लोगों को लिंक मिल सके, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो लाइव आए तो आप लोगों को पता चल जाए। एंड देयर आर गोना बी अदर मास्टर क्लासेस एज वेल, एंड आगे जैसे मैंने बताया हमारे ग्रैंड मॉक्स भी होंगे, तो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टू गेट एक्सेस टू द फ्री स्टफ। ठीक है, इसको स्कैन करना है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इन केस इट्स नॉट वर्किंग, अच्छा देखो, आपने अपना फोन का कैमरा खोलना है एंड वहां से इसको स्कैन करना है। इफ इट्स नॉट, आई रुको, लेट मी चेक फ्रॉम माय साइड, लेट मी ट्राई टू स्कैन इट माई सेल्फ। आपने अपना कैमरा खोलना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड हियर इट सेज स्कैन हियर। रुको, लेट मी लुक इनटू इट। अच्छा, इन केस अगर आप लोगों का क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा, तो you guys can use the link that we're about to share with you guys shortly in the chat box। ठीक है, तो उस लिंक को यूज करके you guys can get access to this, अगर आप लोगों का ये स्कैन होके काम नहीं कर रहा। ठीक है, so a link will be shared shortly and you guys can use that to get access to this। ठीक है, अगर ये स्कैन होने वाला काम नहीं कर रहा है, क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा है, तो we are gonna have share a link with you guys, उसको यूज करके you guys can get access to this। ठीक है, the link will be shared shortly in the chat box। जैसे ही होगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, make sure to stay tuned। अच्छा, now we have question and answer session, and let me check, after the question and answer session we will be having a little surprise that we have for you। इतनी देर से जिस चीज के लिए वेट कर रहे थे वो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम वैल्यू रह रही है, कांस्टेंट का भी मतलब है सेम वैल्यू रह रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, तो आप उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, अगर बच्चों स्कैन नहीं हो रहा, तो फिर आप लोगों को भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा शॉर्टली, यू गाइस कैन यूज दैट। ठीक है, नाउ अबाउट द एक्चुअल थिंग जिसके लिए इतना वेट कर रहे थे, वी आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड दैट, द सरप्राइज दैट वी हैड फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। कोई भी चीज आप लोगों को समझ नहीं आ रही, make sure to let me know in the chat box और हम उसको डिस्कस करते हैं। After that we are gonna reveal the surprise we had for you। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है तो लेट मी नो।
ओके, डिले हुआ एमडी कैट अभी तक ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुआ। ठीक है, वेलोसिटी वाली बात रिपीट कर दूं, वेलोसिटी वाली बात कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आई होप दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, इफ नॉट मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में लिख के। कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, आप उसे कांस्टेंट भी कह सकते हो, उसका भी मतलब है चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म भी कह रहे हो, कह सकते हो, उसका भी मतलब है चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सॉल्व पास्ट पेपर्स फ्रॉम 2020 to 2021, आफ्टर दैट व्हाट टू डू। 2020 to 2021 कर लिया तो 2022 से लेके 2024 तक करो। ठीक है, और अगर अपने प्रोविंस का कर लिया तो मेक श्योर करो कि दूसरे प्रोविंसेस का भी कर लो, दैट इज लाइक द मोस्ट, आप कह सकते हो कि जो लाइक आप जिस तरह अगर आप फेडरल से दे रहे हो तो पंजाब का भी कर लो। ठीक है, पंजाब से दे रहे हो तो फेडरल का भी कर लो, अगर कोई और प्रोविंस है तो पंजाब या फेडरल में से किसी एक का भी कर लो। ठीक है, पास्ट पेपर्स इस तरीके से कर लो। ठीक है, ओके। Tips for nums. Nums के लिए focus on federal and Punjab की book. Try to solve as many nums के past papers as you can and try to strengthen your concepts as much as you can. Concepts do matter a lot. ठीक है, हाँ अगर आप सिंध से हो तो यस सिंध के साथ फेडरल का कर लो। ठीक है, okay, so अगर आप लोगों को QR code was not working previously, so there is this link you guys can check that is for the QR code जो आप लोग स्कैन करना चाह रहे थे उसका लिंक है ये, आप लोग यहाँ इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, इस लिंक को देख लो and then we are going to reveal the surprise. Good for you guys, not so many people are here. So you guys are the lucky ones. ठीक है, हाँ प्रायोरिटाइज अपने प्रोविंस को ही करना है, चाहे बुक हो चाहे पास पेपर्स हो। जो क्वेश्चंस थे दैट वी हैड फॉर यू, उसका जो लिंक है जो आपने क्यूआर कोड स्कैन करना था, इफ दैट्स नॉट वर्किंग फॉर यू देयर इज दिस लिंक जो ओपन हुआ हुआ है, तो मेक श्योर यू गाइस आर चेकिंग दैट आउट एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ठीक है, क्विज आप लोगों ने वहां से करना है, द क्विज वी वर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ पे लिंक पिन हो गया है, आप लोगों ने जाना है इस लिंक पे एंड इसको स्टार्ट कर देना है। Okay, so here we are. Let me open the quiz.
Here is the quiz. We are about to start it in like we are about to start it shortly. So stay tuned to solve it. Okay, so here we are. So sorry for the inconvenience. Uh, you guys can now we can now together start this. Okay, so everyone, this is the first question. The quiz has started. I am so sorry for the inconvenience. Um, okay, so yes, statement was according to Lenz's law induced current always. So yes, it opposes the change that causes it. ठीक है, लेंजेस लॉ में हम ये कहते हैं ना कि जो फ्लक्स उसको कॉज कर रहा होता है ये उसको अपोज कर रहा होता है. ठीक है. So this is the first one. Okay, what you guys need to do is जो जल्दी मार्क करेगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है. So make sure you guys are doing it quick.
Okay, next question. Okay, moving to the next question. Acha, there is this link in the chat box that you guys can use to join. Also, QR code भी है. ठीक है? So make sure you guys are doing it. Okay, so the next question is Compton shift depends on. जो जितनी जल्दी आंसर करेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. तो make sure you guys are being quick. To get the quiz link, there is this link in the chat box जो कि पिन हुआ है. Make sure you use that. ठीक है? So उसको यूज करके ज्वाइन करो या क्यूआर कोड भी है जिससे भी ज्वाइन होता है उससे ज्वाइन कर लो. ठीक है?
Okay, so the next question is on photoelectric emission, increasing light intensity increases. So अगर आप photoelectric effect की बात कर रहे हो, आप light intensity increase करोगे तो क्या चीज increase करेगी? So the right answer is number of electrons emitted क्योंकि एक photon एक ही electron emit करते हैं. जब आप intensity increase करते हो, that means you are increasing the number of photons. जब photons increase करोगे तो number of emitted electrons increase होंगे. Next question is, okay, make sure you guys are answering quickly. ठीक है. A bullet of mass 0.02 kilogram is moving at 400 meter per second. It embeds into a wooden block and comes to rest after penetrating 2 meter. What is the deceleration? And you have a constant value for it. So you have to find the deceleration, any negative acceleration. So you have the right answer, that is 1.6 into 10 raised to the power 4 meter per second. The next question is, make sure you guys are selecting the answers quickly. Two blocks slides down a frictionless incline of height h, its speed at the bottom from the rest. It's square root 2gh, square root gh only and 2gh only. So yes, the right answer is square root 2gh. That is the right one. Most of you did it right. Excellent. Good work. Okay, so the next question is, make sure to mark the answers jaldi to get more points. Two identical tuning forks produce the sound of same frequency. One fork is gently loaded with a small wax piece. Now, when both are sounded together, no change, still same frequency. A steady sound, but it's going to be louder. Beats due to frequency difference, and noise with random variations. Jaldi mark it. I'm just vouching for all of you. Yeah, so beats with the frequency difference is the right answer. क्योंकि beats आपके पास ऐसे इतना होता है ना, frequency difference होता है आपके पास. So yeah, this is the right answer. Next we have a जल्दी statement पढ़ लेते हैं साथ साथ. It's easier for you guys to solve this. And make sure to stay till the end for the surprise. Surprise अभी भी रहता है, ठीक है? A point charge is placed inside a hollow, uncharged conducting spherical shell. The electric field inside the cavity at a point, not in the center, is zero everywhere inside, directly radially outward, non-zero and depends on the position, equal to the field due to induced charges on the shells only. So the right answer is zero everywhere inside. ठीक है, उसने कहा था inside the cavity. So yeah, most of you did it right. Excellent work. Okay, next question is, the decay constant lambda of the radioactive sample is related to the half-life T1 by 2 by. Formula है, जल्दी से बताओ. This is simple. We had like 1 to 2 numericals. I know that is not practically possible to solve in 5 to 10 seconds, but these questions, they are so doable. जल्दी से आपने करना है. जल्दी से. It's simple. Excellent. I'm so proud of you all. So yes, T1 by 2 is equals to ln2 divided by lambda. That is basically the relation. Excellent work, everyone. Okay, moving to the next question. We still have 10 questions. So अगर आप लोगों के अभी तक confusion हो how to solve and stuff, this is your time to shine. ठीक है? Okay. A sound wave travels from medium A to B. Its speed decreases, but frequency remains the same. What happens to the wavelength? Okay, what is the relation between speed and wavelength? जल्दी से बताओ. आपने एक factor constant रख लिया, दो के दरमियान relation देख रहे हो. जल्दी से. V is equals to F lambda. V is equals to F lambda. The relation is going to be V is equals to F lambda. ठीक है? So what happens to the wavelength? ठीक. Okay. Next question is,
Elevator, mass of a person plus cabin, that is equals to capital M. It is accelerating downward with acceleration A. Its normal force exerted on the person of mass M inside the elevator, that is small m into G minus A. ठीक है? So yeah, some of you did it right. Excellent. Next is still 8 questions. In photoelectric emission, if the frequency of light is just above the threshold and its intensity is doubled, फिर क्या होगा? जल्दी से बताओ. So number of photoelectrons double हो जाएंगे, kinetic energy remains unchanged. ठीक है, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास ऑब्जर्वेबल होगा. इंटेंसिटी डबल कर दी, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो आपके पास डबल हो जाएंगे. ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी आपके पास दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो फर्स्ट इज राइट वन, मोस्ट ऑफ यू डिड इट राइट. एक्सीलेंट वर्क. Okay, so next is a conducting rod moves with constant velocity in a uniform magnetic field, but EMF across its end is zero. What happens when the rod motion? This happens when the rod motion is. अब देखो constant velocity से move करे लेकिन induce EMF is zero. Flux change हो रहा है लेकिन EMF induce नहीं हो रही. Angle का मसला है. So it is going to be that is parallel to the field. Angle आपके पास कितना बन रहा है? 0 degrees. ठीक है? Excellent. नेक्स्ट देखो, अच्छा पैरेलल और एंटी पैरेलल में डिफरेंस ये होता है कि पैरेलल में एंगल 0 डिग्री बनता है, एंटी पैरेलल में 180 बनता है. ठीक है. Okay, so we are sharing the surprise with you. Make sure to stick till the end to get to know about it. What is the relation between kinetic energy and momentum of a body? मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी, p square is equal to square root 2m kinetic energy. जल्दी से सॉल्व करो. अच्छा, इसको रिलेट करना है. I told the relation. Kinetic energy is equals to p square divided by 2m. Excellent. I'm so proud of you guys. Good work. Okay. Acha. Next is, we are so near to the surprise you guys were waiting for. Acha. 5 questions left and then we will be talking about the surprise we had for you guys. Acha. Jaldi se answer karna to get more points. The frequency of sound wave is 400 hertz. What is the time period? You know the relation. We can solve it in 15 seconds. It's like doable. The link आप लोगों ने अपने पास open किया है. Make sure you're marking the answers there as well. Frequency and time period में inverse relation होता है. F is equals to 1 by T होता है. T is equals to 1 by F. So excellent, excellent, excellent. You had to do 1 divided by 400 to get the right answer. That you guys did. Most of them. Acha, moving to the 4th question. ठीक है? Okay, you guys are ready. In a standing wave, nodes are the point of. जल्दी से सोच लो nodes क्या होते हैं. Maximum displacement, zero displacement, maximum velocity, both V and C. Okay, you have 11, 9, 7, yeah, minutes. So, zero displacement, excellent. Nodes में displacement zero होती है, anti nodes में maximum displacement आपके पास होती है. Okay, 3rd question. 3 questions to go, and then we'll talk about the surprise we had for you guys. Okay, make sure to answer it quickly to get more points. Okay, if an object moves with uniform velocity, what is its acceleration? It is so simple. So simple. Uniform velocity से move करे तो acceleration क्या होगी? जल्दी mark करो to get the maximum points. If an object moves with uniform velocity, its acceleration is going to be 0. Excellent. Uniform velocity है, जब initial और final velocity की value same आएगी तो आपके पास जब आप उन्हें subtract करोगे तो answer is going to be 0. ठीक है? आपके पास acceleration 0 दो cases में होते हैं, या तो velocity uniform हो या तो velocity 0 हो.
ठीक है. Okay, so second question. Two questions left, including this one. And then we'll talk about the surprise. Okay. A car moves on a horizontal circular track with constant velocity with statement is true. Acceleration zero, velocity constant, and net force is towards the center. Work done by the centripetal force is positive. Okay. You need to eliminate the wrong ones. I wish nobody does. Delta is the right answer. Oops. अच्छा, work done by centripetal force is always zero. इसको याद रखना क्योंकि force और displacement में angle जो होता है वो बन रहा होता है 90 degrees. ठीक है? And since आपके पास एक car move कर रही है ना horizontal circular track, the main point was the circular track. इसका मतलब एक centripetal force लग रही होगी towards the center. So yes, this option is the right one. Acceleration zero इसमें नहीं होगा, ठीक है? Okay, क्योंकि centripetal acceleration है ना, centripetal force है तो acceleration भी है. Work done by a force on an object moving in a closed path under the conservative field, that is zero. ठीक है? Okay, here we are done with the quiz. Now talking about the surprise you guys were so excited about. Are you guys ready for the surprise? Let me know. Show me the enthusiasm. Show me the energy. I want to know how excited are you guys. I know you guys have waited like for so long. It is like it's almost 2 hours. I know. ठीक है? So surprise time. Okay. I'm not getting enough responses. Yes, so I need to make sure you guys are ready. You guys are gonna let me know about that by writing in the chat box. Also, don't forget about the grandma, because like, man, you all know how important this is, right? So make sure that you guys are joining the WhatsApp group. जिसका लिंक आप लोगों को पिन हुआ हुआ है चैट बॉक्स में. मेक श्योर टू ज्वाइन दैट. ठीक है, ताकि आप लोग इस ग्रैंड मॉक को सॉल्व कर सको. ठीक है. ऑल्सो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो. ठीक है. And we will be sharing the details of the surprise in just a minute or two. Okay, so I can see the energy. मॉक का लिंक आप लोगों को जो पेन मैसेजेस है वहां पे देख लो चैट बॉक्स में. ठीक है. QR कोड है, बेशक वो स्कैन कर लो. हियर इज द कोड यहाँ पे. ठीक है. Okay, so you guys can check in the chat box. The surprise is out. This is the link, you guys. Go check this out. This was the surprise that you guys had been waiting for so long. I know. Make sure कि आप लोग साथ WhatsApp की community join कर रहे हो to get access to this free grand mock. Man, this is super important. ठीक है. And the surprise as well. Make sure to click on the link and check out the last minute essentials that you need to have in order to ace your MDCAT exam. Okay? So I wish you all best of luck. Also, if you have a question, you guys can let me know. And I wish you all best of luck for your MDCAT. And one more thing that is super important, don't forget about the quiz. Make sure to join the community. Make sure to solve the quiz and make sure you know what are your strengths, which chapter are your strengths, and what are your weaknesses. And make sure you're working on your weaknesses as well. Okay? So here is the surprise in the link. Make sure you click on the link and get access to the stuff that is really, really essential for you guys. So yes. इसके अलावा if there are any questions, you guys can let me know. In case of any question or confusion, you guys can let me know. The surprise is out. The link is pinned. Go check that out and make sure you're not missing that.
Okay. I wish you all best of luck for your MDCAT. And in case of any question or any sort of guidance that you guys might need, you guys can comment, and I'll be more than happy to help you guys uh, whenever you need that. Okay. So thank you everyone for joining and interacting in the chat box as well. I highly appreciate the efforts from your side. It was very nice having this session with you all, and I hope it was helpful for you guys as well. Thank you so much for joining and being that active. And see you guys again, inshallah, in the next session. But tab tak ke liye, I wish you all best of luck and Allah Hafiz.